تھے. حضرت عمر نے فرمایا فقال ما آتن نالین کہ اے ابا ہریرہ یہ نالین کیسے ہیں، یعنی یہ جوتے کیسے ہیں. اب آپ اس کو میں آپ کو تھوڑا ذہن قریب کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جب ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے سلام کیوں نہیں کیے، خیریت کیوں نہیں پوچھے؟ ارے سب سے بڑی جس چیز کے لیے بےتاب تھے صحابہ، تھوڑی دیر رسول پاک کے چہرے انور کی زیارت نہیں کرتے تو وہ پریشان ہو جاتے. وہ صحابہ کب سے پریشان تھے کہ رسول پاک واپس نہیں آئے. اور کیوں نہ ہو حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں واللہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پوری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے. اب یہاں شیئا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ ہی تو کر رہے ہیں، مبالغہ ہی تو کر رہے ہیں. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری دنیا میں ان کے جیسا مرد نہیں دیکھا ہے، میں نے پوری دنیا میں ان کے جیسا اور کو، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت شیئا پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی سورج میں زیادہ آفتاب ہے، کوئی کہہ سکتا تھا سورج میں زیادہ شعاعیں ہیں، کوئی کہہ سکتا تھا کہ چاند کی چاندنی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کہہ سکتا تھا گلاب بہت زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کہہ سکتا تھا پانی کی چمک بہت خوبصورت ہے، کوئی کہہ سکتا تھا آبشاروں کا ترنم بہت خوبصورت ہے. لیکن صحابہ نے بتا دیا کہ پوری دنیا میں ایسا خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. تو میرا ایمان پکار اٹھا بڑی سے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ وہی صحابہ پریشان تھے. حضرت عمر فاروق اعظم جب تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے سوال تو یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہوتا کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، مل گئے کہاں، یہی سوال ہوتا. عمر فاروق اعظم کو معلوم ہے اسی میں تشریف فرما ہے، اسی میں تشریف فرما ہے. وہ خوشبو حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی مل رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ پہلے نہیں پوچھا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ مارکیٹ سے یا کہیں سے کوئی سامان لے کر آئیں گے، آپ کے ہاتھ میں وہ سامان لٹکا ہوا ہوگا، آپ کے ہاتھ میں آپ کے جیب میں ہوگا، یا آپ نے کسی ایسی جگہ رکھا ہوگا جہاں عام طور سے لوگ سامان لے کر چلتے ہیں، تو آپ کا دوست اگر مل گیا تو آپ سے پہلے السلام علیکم اور پھر اس کے بعد خیریت پوچھے گا. لیکن اگر آپ کوئی ایسا سامان موبائل اگر لے کر آ گئے، یا آپ اپنی جوتیاں ایک سر پر لے کر چلیں گے، یا آپ سینے سے لگا کر کے چلیں گے، تو آپ کا دوست پہلے سلام سے پہلے ہی پوچھے ارے کیا ہوا، یہ کیا لے کے چل رہے ہو، سر پر لے کے جا رہے ہو، یہ کیا سینے پر لے کر جائے. اس حدیث پاک میں علماء کرام کی، بزرگان دین کی جوتیوں کے صدقہ لے کر کے، حضور محدث کبیر کی جوتیاں سیدھی کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں نہ اس کی شرح میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو جو نالین پاک رسول پاک نے عطا فرمائے تھے، فرمایا تھا کہ اس کو لے کر جاؤ، جو صدق دل سے کلمہ پڑھے اسے جنت کی بشارت دے دو. حضرت ابو ہریرہ نے کہاں رکھی ہے اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن یاد رکھے جب حضرت عمر فاروق اعظم مل رہے ہیں تو ان سے کیوں سوال نہیں کیا کہ رسول پاک کہاں ہے، ان سے کیوں سوال نہیں کیا تم خیریت سے ہو، ان سے کیوں سوال نہیں کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. ڈائریکٹ یہ پوچھا اے ابا ہریرہ یہ نالین کیسی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی سب سے پہلی نگاہ نالین پر پڑی ہے. اب اگر وہ نالین پیچھے ہوتے تو ڈائریکٹ نالین کے بارے میں نہیں پوچھتے، اگر لٹکائے ہوتے تو ڈائریکٹ نالین کے بارے میں نہیں پوچھتے، یا کسی جھولے میں ہوتے ڈائریکٹ نالین کے بارے میں نہیں پوچھتے، یا چادر میں لپٹی ہوتی تو ڈائریکٹ نالین کے بارے میں نہیں پوچھتے. آپ سے جب آپ کا دوست ملتا ہے، جب آپ سلام کلام کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہے، اس کے بعد فوراً اس کی نگاہ یا تو اونچی ہوگی یا تو تھوڑی نیچی ہوگی، اور آپ کے سینے پر کیا چیز ہے یا آپ کے سر پر کیا چیز ہے وہ فوراً دکھائی دیتی ہے. اس سے مجھے عادتاً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے ڈائریکٹ جو سوال کیا یہ نالین کیسی ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آیا. حضرت ابو ہریرہ نے رسول پاک کے نالین پاک کو یا تو سینے پہ لگایا تھا یا سر اقدس پہ رکھا تھا. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی
جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں، ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کو یاد سے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں تو وہابی، دیوبندی، جتنے بھی ہے قادیانی، الحمدللہ فقیر قادری چیلنج کرتا ہے، ثابت کر کے دکھاؤ کہ کہیں اور نالین پاک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، ہم نے تو عادتاً ثابت کر دیا۔ آئیے اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب نالین پاک لے کر بھیجا تو کچھ لوگ اس کی شرح یہ کرتے ہیں کہ رسول پاک نے وہ نالین اس لیے دیے تھے کہ لوگ جس کو یہ خبر دی جائے کہ جو سمیم قلب سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کو جنت کی بشارت ہے، تو ان کو یقین ہو جائے کہ حضرت ابو ہریرہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ بولے کیوں؟ کہ اس لیے کہ نالین پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ جو ہے ان کی شرح ہو سکتی ہے یا کچھ اقلاق کی شرح ہو سکتی ہے، لیکن ذرا سوچے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو بھی کسی ایک کی پیروی کرے وہ ہدایت پا جائے گا۔ میرے صحابہ عدل و انصاف والے ہیں، میرے صحابہ سب کے سب عادل ہیں، رسول پاک نے فرمایا ہے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ جو بھی خبر دیں گے وہ سچی ہی خبر دیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ رسول پاک کی تربیت یافتہ ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے جو نالین پاک اٹھا کر کے دیے اور نالین پاک لے کر حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، یہ نشانی کے طور پر دیے گئے، یہ عقل رکھنے والے، یہ عقلاؤ کی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں عاشقوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یہاں شرح کیا ہوگی تو عاشق بتائے گا۔ یہاں پر نشانی کے طور پر نہیں دیے گئے کہ لوگ انکار کر دیں گے اس بات کا، اس لیے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہے، سب کے سب ثقہ ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کو نالین پاک جو دے کر بھیجا گیا ہے، اس کے آگے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ نہیں فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور آگے حضرت ابو ہریرہ کے پاس نالین پاک ہے۔ اب اس بات سے سمجھ میں آ گیا کہ رسول پاک نے گویا اس لیے نالین پاک لے کر بھیجا ہے کہ جاؤ جو بھی کلمہ پڑھے اسے بتا دو کہ کلمہ اسی کا قبول ہوگا جو ہماری نالین پاک کو اٹھائے گا۔ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کا کلمہ قابل قبول نہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ اس لیے وہ حدیث پاک میں رسول پاک نے نالین پاک لے کر بھیجا ہے۔ اور آگے بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، واپس لے کر آئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ صحابہ کا عشق کیسا ہے۔ آج تھوڑے سے مسائل و آلام آ جاتے ہیں تو ہم لوگ ناپنا شروع کر دیتے ہیں، مولانا ابھی مسائل آتے ہیں، ابھی کیا ہے اپنوں کو ایک پاسپورٹ بنوانی ہے، اور ایک آدھار کارڈ بنوانے میں ان کی آفسوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ حکومت بدبخت بیٹھ گئی ہے، اس لیے ہمیں سب لوگوں کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ ارے میاں تمہارے اوپر جو پریشانی آتی ہے یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے۔ کیا میدان بدر میں پریشانیاں نہیں آئی تھی؟ کیا میدان احد میں پریشانیاں نہیں آئی تھی؟ کیا جنگ خندق میں پریشانیاں نہیں آئی تھی؟ کیا جنگ حنین میں پریشانیاں نہیں آئی تھی؟ ارے ہم تو حسینی ہیں، کیا کربلا میں پریشانیاں نہیں آئی تھی؟ اور پھر بھی ہمیں کس چیز کا ڈر ہو یار؟ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، ہندوستان کل بھی غریب نواز کا تھا، آج بھی غریب نواز کا ہے، صبح قیامت تک غریب نواز کا رہے گا۔ ہندوستان کا سلطان غریب نواز ہے اور ہندوستان کا وزیر امام محمد رضا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد غریب نواز زندہ باد۔ ہمیں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا جو وقت لکھا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ جلدی ہوتی ہے۔ جب تک روئے زمین پر آپ کے رزق کا ایک دانہ بھی ہے آپ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی ایسی جان نہیں ہے
जिसे हम रोजी न देते हो और हम परेशान हो गए। अरे अल्लाह तबारक व तआला इतना करीम है, भूखा जगाता तो है, भूखा सुलाता नहीं है। रब तबारक व तआला की ये शान है, वो सबको अता फरमाता है, बस हम सच्चे मोमिन बन जाए। हम ही लोगों के बारे में तो फरमाया गया, इरशाद फरमाता है वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद हो अगर सच्चे मोमिन हो। सरबलंद होना है तो सच्चे मोमिन बनना है। तो सच्चा मोमिन कौन है? आओ कुरान ही से पूछते हैं, फिर हदीस पाक के बारे में जाएंगे। पहले कुरान से पूछे कि सच्चा मोमिन है कौन, सच्चे मोमिन की कोई निशानी दिखा दें, सच्चे मोमिन की कोई हमें कोई शनाख्त बता दे, सच्चा मोमिन हम पहचाने कैसे। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं आया कि नमाज वाला सच्चा मोमिन है, रोजे वाला सच्चा मोमिन है, इसलिए कि रोजा सब रख लेंगे, नमाजें सब पढ़ते हैं। सच्चे मोमिन की अलामत ये है, सरबलंद होने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ईमान वालों सिवाय मोमिनों के काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। अब जरा सोचे मोमिन की शनाख्त क्या है। आज हर एक जगह दोस्तियां हो रही है। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला, ईमान वालों काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ, काफिरों को अपना राजदार न बनाओ कि वो तुमसे धोखा करने में कमी नहीं करते हैं। अब आप जरा सोचे, रसूल पाक की गुस्ताखी करने वाला मुसलमान हो सकता है, ये वहाबी कभी मुसलमान हो सकता है, ये देवबंदी कभी मुसलमान हो सकता है, ये गैर मुक़ल्लिद कभी मुसलमान हो सकता है, ये कादियानी मुसलमान हो सकता है, ये नैशरी जितने भी आ गए, ये फितने आज नहीं उठे मेरे दोस्तों। हमें सोचना चाहिए, फितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से जब तशरीफ ले गए, सहाबा के दौर में ही फिरके वजूद में आने लगे थे। ये खारजी, ये राफजी, ये शिया सहाबा के दौर के फिरके हैं, लेकिन क्या उनसे कोई ताल्लुक रखा गया? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, हमें बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना है, हमें अपने आप को बचाना है। जब हम सच्चे मोमिन हो जाएंगे तो कामयाबी हमारे कदमों में, दौलत हमारे कदमों में, सरफराजी हमारे कदमों में। मंसूर और मुजफ्फर अगर कोई दिखाएगा तो वो मोमिनों की जमात होगी, वो सच्चा मोमिन बनना है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलमजमईन ने किसी भी हाल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हट के कोई काम नहीं किया है, और जब उनके मोहब्बत पर चले हैं और उनके नक्शे कदम पर चले हैं, उसी नक्शे कदम पर हम चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हजरत उमर फारूक आजम हाकिम की मुस्तदरक में ये हदीस पाक, ये रिवायत मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ फरमा है। आपने एक नया कुर्ता सिलवाया है, जब आपने एक जुब्बा पहना, उस जुब्बे की आस्तीन बहुत लंबी हो गई थी, वो आस्तीन बहुत ज़्यादा लटक रही थी। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने शहजादे से कहा, जाओ और घर में से चाकू लेकर आओ। आप सबको मालूम है कि कोई कपड़ा काटने के लिए उसका बेहतरीन असलहा कैंची है, जिससे आप काटेंगे तो कपड़ा सीधा कटेगा। चाकू, छुरी और ऐसी कोई चीज से जब काटेंगे तो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, यहाँ तक कि उसके रेशे आ जाएंगे बाहर, होना ही है, सबको मालूम है। लेकिन अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की आस्तीन जब बहुत बड़ी हो गई तो आपने फरमाया, जाओ चाकू लेकर के आओ। आपका बेटा छुरी लेकर आ गया। जब आपने उसको इस तरीके से पकड़ने के बाद पकड़ा दिया और हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी जो जायद आस्तीन थी उसको छुरी से काटा। जब छुरी से काट कर फारिग हो गए, कपड़ा अलग हो गया, तो उससे धागे लटकने लगे, और दिखता है ना, भद्दी दिखती है जब धागा लटकने लगेगा। हजरत उमर फारूक आजम ने जब आस्तीन को छुरी से काटा, धागे लटकने लगे। रिवायत में आता है एक धागा तो इतना लंबा था कि आपके घुटने से नीचे तक का था। लेकिन जब दरबारियों ने देखा, हजरत उमर फारूक आजम के शहजादे ने देखा, वो आने के बाद अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर बोलने की सकत नहीं थी, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, अगर आपने इसी कपड़े को कैंची से काटा होता, कपड़ा सीधा सीधा कटता और खूबसूरत कटता और अच्छे तरीके से कटता। आपको भी मालूम है कपड़ा काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल होता है, चाकू और छुरी का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कुर्बान जाइए अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आजम के उस जवाब पर कुर्बान जाइए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, मुझे मालूम है, ए दरबारियों मुझे मालूम है कपड़ा काटने के लिए बेहतरीन असलहा क्या चीज है, लेकिन कसम खुदा की यही मामला, यही मसला, यही वाकया रसूल पाक के साथ पेश आया था। वक्त पर कैंची मौजूद नहीं
रही थी। रसूल पाक ने अपनी आस्तीन पाक को जब छुरी से काटा तो अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, उमर में इतनी ताकत नहीं थी कि रसूल पाक छुरी से काटे और उमर कैंची से काटे। मेरी मोहब्बत का तकाजा यही था कि मैंने भी उसको छुरी से काटा। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम है, जरा सोचे तो सही उनका तरीका क्या है, अंदाज़ जिंदगी क्या है, क्या था उनके पास। ना कोई धन दौलत है, ना कोई माल ज़र है, ना बड़े बड़े बंगले हैं, ना गाड़ियां हैं, ना जीने के लिए इतना असबाब है। एक चादर में दो दो सहाबा अपनी जिंदगी गुजारने वाले, पूरी हिस्ट्री आपके सामने है उनके पास। लेकिन 313 होने के बाद भी पूरी दुनिया में रौब और दबदबा, ये कौन सी चीज थी? इश्क मुस्तफ़ा का वो चिराग था जो दिलों में जलाए हुए थे। इश्क मुस्तफ़ा की वो ताकत थी, वफादार मुस्तफ़ा होने का ये जज्बा था, इसारे मुस्तफ़ा का वो जज्बा था जो सहाबाए किराम को रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन को उस मकाम पर लेकर गया। आज भी कुछ गया नहीं है। मुसीबत को हम देख रहे हैं, मसाइब को हम देख रहे हैं, परेशानियां हम देख रहे हैं। आज एक वो परेशानी, अगर हजरत खब्बाब इब्नुल अर्द वाली परेशानी, उनकी परेशानी का 1000वां हिस्सा भी अगर हमारे पर आ जाए तो तबाह हो जाए। जरा सोचे तो सहाबा ने कैसी कैसी परेशानियां झेली है। हजरत खब्बाब इब्नुल अर्द जब आप हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आप दरबार में जाने से पहले हजरत अबू सुफियान अब ईमान ले आए हैं, वो और उनके जितने भी हवारी थे वो हजरत उमर फारूक आज़म के पास उनके दौर खिलाफत में एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए। जब आप दरवाजे के करीब आए, दरबान से कहा ऐसा है कि तुम चले जाओ और हजरत अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त लेकर आओ, अबू सुफियान आए हैं। दरबार ने कहा आप लोग यहीं, दरबान ने कहा आप लोग यहीं तशरीफ रखें। हजरत उमर फारूक आज़म के पास दरबारी पहुंचे, अर्ज कहा हुजूर अबू सुफियान और उनके हवारी तशरीफ लाए हैं, आप कहें तो बुलाए। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया उनको वेटिंग में बैठा, यानी उनको वहाँ अभी ठहरने दो, अभी उनको वहाँ बैठा। थोड़ी ही देर में हजरत खब्बाब इब्नुल अर्द तशरीफ लाते हैं, वो दरवाजे पर आए, दरबान से कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन को इजाज़त ले लीजिए, खब्बाब हाजिर खिदमत है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। दरबान ने कहा अभी हाजिर होता हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म से इजाज़त चाहिए। हजरत खब्बाब इब्नुल अर्द आए, हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा अच्छा उनको फौरन अंदर बुला, उनको जल्दी अंदर बुला लिया जाए। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अबू सुफियान वहाँ बैठे हैं, ये हजरत उमर फारूक आज़म की फिरासत है, बताना चाहते हैं कि मकसद क्या है। हजरत उमर फारूक आज़म ने बुला लिया। हजरत अबू सुफियान वहाँ तशरीफ फरमा है, अपने हवारियों को कहते हैं कि देखो ना क्या हाल हो गया है, कल को जो हमारे यहाँ गुलाम थे वो आज पहले बुला लिए जाते हैं और हम लोग को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, हम लोग को इंतज़ार के लिए बैठा दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। तो उन्हीं के हवारियों में से किसी ने जवाब दिया ये अबू सुफियान, रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब इस्लाम का ऐलान हुआ था, जब वहदानियत का ऐलान हुआ था, जब रिसालत का ऐलान हुआ था, फारन की चोटी पर से सबको यकसा आवाज़ दी गई थी। तो जो पहले पहुंचा है उसे पहले बुला लिया गया है, जो बाद में पहुंचा है उसको इंतज़ार के लिए सब्र किया जाए, सब्र किया जाए। हजरत अबू सुफियान वहाँ तशरीफ फरमा है। हजरत उमर फारूक आज़म को अंदाज़ा लग गया कि ये जो हजरत खब्बाब इब्नुल अर्द कल तक के उनके यहाँ के गुलाम थे अब सब ईमान ले आए हैं, अब यहाँ पहले आ गए हैं, ज़रूर अबू सुफियान को गिरा गुजरेगा। अब दरबान से कहा जाओ अबू सुफियान के और उनके हवारियों को, साहिबों को बुलाओ। हजरत अबू सुफियान और उनके साथियान को बुलाया। जब आप तशरीफ़ ले आए, हजरत उमर फारूक आज़म को सब मालूम था, फिर भी कहते हैं, फरमाते हैं ए खब्बाब आज मुझे तुम्हारी पीठ देखने का बहुत दिल करता है, ए खब्बाब आज मुझे तुम्हारी पीठ देखने का बहुत दिल करता है। वो लोग गौर करें जिनके पर एक छोटी सी मुसीबत, अरे 1000-2000 का नुकसान आता है तो कहते हैं हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। मियाँ नुकसान ही नुकसान। जिन सहाबा ने ज़िंदगी गुजारी है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस्लाम के लिए गुजारी है, उनके बच्चे यतीम हुए, उनकी औरतें बेवाएँ हुई है। इस्लाम जो हम तक पहुंचा ऐसे नहीं पहुंच गया कि हम किसी मुसलमान की गोद में आँख खोले, नाम अब्दुल रहमान रख दिया गया तो मुसलमान हो गए, नाम मोहम्मद सलीम रख दिया गया तो मुसलमान हो गए। ये इस्लाम जो आपके यहाँ पहुंचा है वो कई बच्चे यतीम हुए हैं, कई औरतें बेवा हुई है, कई घरों का शामियाना उजड़ गया है, कई घरों के आशियाने, कई आशियाने बिखर गए हैं, तब जाके इस्लाम तुम तक पहुंचा है। उस इस्लाम को इतनी आसानी से न ले लो, इस इस्लाम को इतना आसान मजहब न समझो, इस इस्लाम को जो तुम्हारे यहाँ आया है
तो कम से कम इस इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश करो कि हम रसूल पाक के गुस्ताखों के साथ नहीं बैठ सकते, हम रसूल पाक के दुश्मनों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। हजरत खब्बाब इब्न अर्द से हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, ए खब्बाब मुझे तुम्हारी पीठ देखने का बड़ा शौक हो रहा है। हजरत खब्बाब इब्न अर्द ने कहा, हुजूर, बोले कि नहीं खब्बाब, तुम अपनी कमीज को उतारो, मैं तुम्हारी पीठ देखना चाहता हूँ। हजरत खब्बाब इब्न अर्द ने जब अपनी कमीज को उतारा है, अल्लाह अल्लाह, रावी यहाँ मौजूद रावी फरमाते हैं कि जब हजरत खब्बाब इब्न अर्द ने अपनी पीठ से कमीज उतारी है, जब आपकी पीठ को नंगी कर दिया गया, अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा, ए खब्बाब तुम्हारी पीठ को क्या हुआ है? हजरत खब्बाब इब्न अर्द के सब्र पर कुर्बान जाइए। ये हजरत खब्बाब इब्न अर्द तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारी इस्तिकामत को सलाम, तुम्हारी रिफत को सलाम, तुम्हारी बुलंदी को सलाम। हजरत खब्बाब इब्न अर्द की पीठ से जब कमीज उतारी गई, हजरत उमर फारूक आजम अपने तख्त से उतरने के बाद खब्बाब इब्न अर्द की पीठ को छू लिया। उसके बाद कहते हैं, खब्बाब तुम्हारा ये क्या हाल है? हजरत खब्बाब इब्न अर्द ने कहा, हुजूर ये मेरी पीठ है, जो है मेरी पीठ को नंगा आग पर लेटा दिया जाता था और मेरी पीठ से जो चमड़ी और उसके बाद गोश्त पिघलता, उसका पानी आता, उसकी चर्बी पिघल के आग ठंडी हो जाया करती, लेकिन मेरे सरदारों के दिलों में रहम नहीं आता था। रावी फरमाते हैं कि हजरत खब्बाब इब्न अर्द को जो नंगी पीठ के बल जब आग पर लेटाया गया, उस दिन से आपकी जिंदगी जब तक जाहिरी हयात खत्म हुई तब तक कि आपकी पीठ पर गोश्त नहीं आया था। जब कमीज उतारते तो रीढ़ की हड्डियां नजर आती थी। इस्लाम की कुर्बानियां ऐसे पेश की गई है। आप जब कमीज उतारते तो डायरेक्ट आप देखते कि उनकी हड्डियां नजर आती है। ऐसी मुसीबत किसी पर आई हो तो एक आदमी खड़ा होकर बतावे, अरे मेरे दोस्तों, मुसीबत झेलना हमारा काम है। इसलिए मुसीबत किस पर आएगी? ईसाइयों पर नहीं आएगी, यहूदियों पर नहीं आएगी, नेचरियों पर नहीं आएगी, वहाबिया दयाकना पर नहीं आएगी, इन फिरकों पर नहीं आएगी। अगर मुसीबत आएगी तो आशिक मुस्तफा पर आएगी, गुलामान मुस्तफा पर आएगी, आला हजरत के मानने वालों पर आएगी। इसलिए कि सही मानों में अगर ईमान की दौलत किसी के पास है तो नबी के सच्चे वफादारों के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये फरमान अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ये लोग क्या इस गुमान में हैं कि ईमान ले आए तो इन्हें ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बल्कि आजमाया जाएगा। अब जो ईमान ले आए उन्हीं को आजमाया जाएगा, वहाबी को नहीं आजमाया जाएगा। वो चाहे मोदिया योगिया के साथ बैठे, चाहे उनकी कुर्सी के नीचे बैठे, वो करता रहे, लेकिन एक आशिक मुस्तफा होगा। नरसिम्हा राव जब बरेली की धरती पर एक आशिक मुस्तफा हुजूर ताज शरिया को मिलने आया, 24 घंटे सर्किट हाउस में रहा, ताज शरिया ने हाथ नहीं मिलाया, उससे मुलाकात नहीं की, फरमा दिया जाए वो चला जाए, हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को दिलों को तकलीफ देने वाला है, मैं उससे नहीं मिल सकता। बेशक। तो ईमान वालों की ही आजमाइश होगी, हर एक की आजमाइश नहीं होगी। एनआरसी का खौफ हमें दिया जाएगा, लेकिन हम थोड़ी ना है, अरे तुम हमको यहाँ से निकाल पाओगे तो लाओ, पहले मखदूम माहिमी का मजार ले आओ, लाओ मखदूम सिन्ना का मजार ले आओ, लाओ शाह बरकतुल्लाह का मजार ले आओ। अरे तुम्हारे बाप दादाओं की हिम्मत नहीं है, गरीब नवाज की हुकूमत है, अरे मजार तो दरकिनार, एक ईंट को तुम उतार नहीं सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें क्या निकाल सकते हो? बस सच्चे गरीब नवाज वाले बनने की जरूरत है। उन वफादार ने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, हजरत खब्बाब इब्न अर्द ने जब अपनी कमीज को उतारा है, उनकी पीठ का ये हाल था। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, इस्लाम के नक्शे कदम पर चलना है तो मुसीबत आनी है, लेकिन हम यही कहेंगे, बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं हो, 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा, चाहे वो किसी का भी दौर रहा हो, हर दौर में मुसीबत आई है। आप उठा करके देंगे मोहम्मद फातेह की उस जिंदगी को देखे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को देखे, तारिक इब्ने ज़ियाद की जिंदगी को देखे, साद इब्ने अबी वक्कास के जब सरिया बीच में आ गया तो घोड़े दौड़ा दिए। हम यही तो कहते हैं, दश्त तो दश्त न दरिया भी छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसे नहीं अपना चाहिए। अरे जान देनी है, हम देते रहेंगे। अरे यही एक जान देने का ही तो बहाना है कि जान देंगे रसूल पाक की ज़ियारत हो जाएगी। यही तो सबसे बड़ा हमारे पास, यही तो एक दौलत बची है कि मौत आना है। जिस हाल में आओ, चाहे तलवार की बौछार में आवे, चाहे गोलियों में आवे, आ जा। ये सीधा है, सामने मदीना है, रसूल पाक की ज़ियारत करना है। सुभान अल्लाह बाहर बेशक उठेंगे, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सोने की चिराग लेके चले। और जब कब्र में पहुंच जाएंगे तो मेरा इमाम हमें बता रहा है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बेशक दोस्तों, हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। मौत तो जहाँ जिस वक्त उसका मुतय्यन है वो वक्त पर आनी है, उसी जगह पर आनी है। फिर आपने अभी सुना कि पूरी दुनिया भी मिल जाएगी, आपको बचा नहीं सकती है। इसलिए ये वहाबी से हम लोग राब्ता जोड़े या देवबंदी से राब्ता जोड़े, ये लोग हमें बचाने वाले नहीं हैं। बचाने वाली मदीने की सरकार है, बचाने वाले गौसे आदम है कि अपने अपने दस्ते पाक को एक कश्ती जो डूबने वाली थी उसे एक थपेड़ा दे दिया तो किनारे पर लगा देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं। एक बात और मुझे याद आती है, कुछ लोग कहते हैं कि साथ में बैठ जाने से हम वाबी थोड़ी हो जाएंगे, साथ में चाय पी लेने से हम देवबंदी थोड़ी हो जाएंगे, हमारा ईमान इतना कमजोर थोड़ी है। अरे मियाँ, यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अगर तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत होता तो जरूर डाकुओं से डरते। यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। आप अपने आप को देख रहे हैं, अपनी सलाहियत को देख रहे हैं। बड़े बड़े औलिया किराम, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने इन बद मजहबों से कैसे रिश्ता नाता तोड़ दिया है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आपकी दरसगाह में बैठने वाला ये मुअतज़िली फ़िरक़े का नाम आप सुनते हैं, लेकिन उसका वजूद ख़त्म हो गया। उसी की औलाद में से वहाबिया दयाब न आए हैं जो अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं। वो मुअतज़िली फ़िरक़ा कब वजूद में आया? हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरसगाह में बैठने वाला मुअतज़िली वासिल बिन अता, उसने एक अक़ीदा नया बना लिया था। क्या अक़ीदा था? उसने कहा मन इर्तकबल कबीरता फहुवा लैसा बिमुमिनिन वला काफिरिन। जो गुनाह कबीरा करता है वो ना मोमिन रहता है ना ही काफिर रहता है। जब उनके स्टूडेंट को ये मालूम हुआ, दूसरे साथियों को मालूम हुआ कि हमारी क्लास में बैठने वाला, हमारी दरसगाह में हमारा रफ़ीक़ सबक़ हज़रत हसन बसरी की बारगाह में, हज़रत हसन बसरी की शान को जानते हैं। हवा में मुसल्ला बिछाए तो वहाँ पर नमाज पढ़ ले, पानी पर मुसल्ला डाले तो वहाँ नमाज पढ़ ले। वो हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमारा ईमान इतना कमजोर थोड़ी ना है कि हम लोग देवबंदी हो जाएंगे साथ में बैठने से। वो लोग जरा सोचे, हजरत हसन बसरी विलायत के किस मकाम पर थे, लेकिन हजरत हसन बसरी को जब ये मालूम हुआ कि इसने ऐसा ऐसा अकीदा बना लिया है कि जो ये अकीदा सहाबा का भी नहीं है और ताबईन का भी नहीं है, हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये ऐसा अकीदा रखा है कि जो गुनाह कबीरा करे वो काफिर भी नहीं रहता और मोमिन भी नहीं रहता है। ये तो नया अकीदा है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ ये नहीं फरमाया, ए वासिल इधर आओ मैं तुम्हें बताऊं, अभी तुम जवान हो, समझाया नहीं, अभी तुम्हारे ऊपर इल्म का खुमार है, ये नहीं समझाया। अभी तुम्हारे ऊपर जवानी का जादू है, ये नहीं फरमाया। अभी तुम्हारे ऊपर जवानी का नशा है, ये नहीं फरमाया। बल्कि हजरत हसन बसरी जो एक निकाह डाले तो वो वली बना दे, हजरत हसन बसरी ने उसे समझाया नहीं, बल्कि सबसे पहला उनका अमल ये था, एतज़िल अन्ना, तो हमसे अलग हो जा। हसन बसरी जब अलग हो गए तमाम मुसलमानों ने उससे रिश्ता नाता तोड़ लिया और मुअतज़िली फ़िरक़ा आ गया। ये अल्लाह वाले हैं जो उनके साथ एक मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो देखा जा रहा है बड़ी बड़ी दरसगाहों में वहाबिया दयारना का इस्तेमाल किया जाता है। उसी दरसगाह की बात करें, उसी मदरसे की बात करें, सरकार हाफिज मिल्लत अली रहमत रिजवान का दयार है। हुजूर हाफिज मिल्लत का तरीक़े कार ये रहा है। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमत, ये रिवायत कौन करता है? हुजूर मुहद्दिस कबीर। हुजूर मुहद्दिस कबीर रिवायत करने वाले, उनसे मैंने सुना है। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं, ये आज नहीं बल्कि बरसों से हुजूर हाफिज मिल्लत के ये इस वाक़िया को हुजूर मुहद्दिस कबीर बयान फरमाते रहते हैं। मैंने तकरीबन 8-9 साल से पहले कई बार सुना है।
حافظ ملت علیہ رحمہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کبھی بھی گردن کو اٹھاتے نہیں، حافظ ملت کو دیکھنا ہے محدث کبیر کو دیکھ لیجئے، حضور محدث کبیر کے جب فرماتے ہیں کہ کبھی وہ اپنی گردن کو نہیں اٹھاتے، حافظ ملت علیہ رحمہ اپنی گردن جھکائے ہیں۔ جہاں شادی بیاہ کی دعوت تھی، اس مالک نے اس شادی بیاہ کے اہل خانہ میں سے کسی نے دعوت پیش کی تھی، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے اور اپنی چھڑی کو دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا، دسترخوان جہاں لگا ہے وہاں تشریف فرما ہو گئے، صاحب خانہ نے کہا ارے حضور کے لیے پلیٹ لے کے آؤ، پلیٹ لے کے وہ اندر پلیٹ لینے کے لیے کیا گیا ہے، حافظ ملت علیہ رحمہ ضرورت بھر کے اپنی نگاہ کو اٹھاتے، اتنی نگاہ کو اٹھانے کے بعد حافظ ملت علیہ رحمہ نے دیکھا سامنے کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ۔ حافظ ملت علیہ رحمہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر نکالو، اس کو یہاں سے نکالو، یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی اس کو سمجھاتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ لاؤ کتابیں لاؤں اور اس کو دکھاؤں، یہ کیا مانیں گے؟ حافظ ملت علیہ رحمہ کا رویہ جاری رہا کہ حافظ ملت علیہ رحمہ کھڑے ہو گئے، اور آپ کھڑے ہونے کے بعد اپنی چھڑی کو لیا، چھڑی لے کے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اب صاحب خانہ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے ابھی حافظ صاحب تشریف لائے تھے، کون سی چیز تھی، کہاں چلے گئے؟ حافظ ملت علیہ رحمہ کے بارے میں چند لوگ وہاں کھڑے تھے، کہا کہ وہ تو ابھی اپنی چھڑی اٹھائے اور گھر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اہل خانہ میں وہ صاحب خانہ باہر آنے کے بعد حافظ ملت کے پیچھے دوڑنے لگا، حضور کون سی ایسی چیز ہے جس نے میرے یہاں دعوت کھانے سے آپ میرے یہاں دعوت کھانے سے مانے ہیں، حضور آپ کس چیز سے ناراض ہو گئے؟ آئیے آپ نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ حافظ ملت علیہ رحمہ نے اپنی گردن گھمانے کے بعد کہا تھا کہ سنو، جس جگہ تمہیں دیوبندی کو بلانا تھا تو مجھے کیوں بلایا؟ جہاں دیوبندی آ سکتا ہے وہاں عبدالعزیز نہیں آ سکتا، یہی تو میرا امام کہہ کے گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حافظ ملت علیہ رحمہ کا رویہ ہے۔ ایک شادی میں حافظ ملت علیہ رحمہ تشریف لے گئے، نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد ابھی اسٹیج سے اتر ہی رہے تھے کہ کسی نے کہا حضور یہ نکاح آپ نے پڑھایا ہے لڑکا دیوبندی ہے۔ حافظ ملت علیہ رحمہ پھر کہے اور فرمایا اے لوگوں سنو، یہ نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح نہیں ہوا، یہ دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ نکاح نہیں ہوا، اگرچہ عبدالعزیز نے پڑھایا نکاح نہیں ہوا ہے، تو بات کرو سب کے ساتھ۔ یہ حافظ ملت کا رویہ رہا ہے۔ اس لیے دوستو حافظ ملت کی زندگی جانتے ہیں، اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے حافظ ملت علیہ رحمہ روزانہ 2 سے 2:30 کے درمیان بیدار ہو جاتے اور تہجد پڑھتے۔ تہجد آپ کی سفر میں بھی نہیں چھوٹتی تھی، سفر میں بھی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی۔ وہ حافظ ملت علیہ رحمہ تہجد میں جب آپ تلاوت کرتے تو ہم لوگ ہوں گے تو 2-3 سورتیں پڑھ لیں گے کہ نیند کا غلبہ ہے۔ وہ حافظ ملت ہے جس نے صرف علماء نہیں، جنہوں نے صرف فقیہ نہیں، جنہوں نے صرف ادیب نہیں، جنہوں نے صرف محدث نہیں، بلکہ انہوں نے ولید کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ حافظ ملت علیہ رحمہ تہجد میں جب 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، 8 رکعت میں آپ 5 پارہ کی تلاوت کرتے تھے، 5 پارہ کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ حافظ ملت نہیں تھے کہ لاؤ میں نے ضیاء المصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، لاؤ میں نے مفتی شریف الحق کو پیدا کیا ہے، اس دیوبندی کو 2 باتیں سمجھا دوں۔ نہیں، طریقہ یہی ہے، حدیث پاک میں ہے اِیَّاکُمْ وَإِیَّاهُمْ، نہ ان کے قریب جاؤ نہ ان کو قریب آنے دو۔ ہمیں تو حدیث یاد ہے، اب طریقے یاد نہیں ہے، چلنا ہے تو رسول پاک کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے فرامین پر چلنا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، سبحان اللہ، تو رحمت پروردگار اپنی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی عقیدت جوڑے رکھنا ہے، اور اتنا نہیں، ہم تو وہ گنہگار ہے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا چہرہ دکھائے، ہم تو اس لائق نہیں ہے، تو ہمیں رسوا ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہم سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے، سرکار غوث پاک
सब की रहनुमाई फरमाते हैं। जब जहां उनका मुरीद पुकारता है उसकी इमदाद फरमाते हैं। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को रब तबारक व तआला ने वो पावर अता फरमाया। कौन सा पावर? हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ में मौजूद है, किताबुर रिकाब में है, हजरत बाबुत तवाज़ु, किताबुर रिकाब बाबुत तवाज़ु में हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। रब इरशाद फरमाता है कि जब बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अब जब अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना ले तो उसका आलम क्या होता है? खुद फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। क्या मतलब इसका? अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, मकानो मकानियत से पाक है। इस हदीस कुदसी का मतलब ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अपने करीब फरमाता है, अपना महबूब बना लेता है, तो उसके कान पर, उसके आंखों पर अपनी कुदरत के वो जलवे उतारता है कि बंदा उस बंदे को पुकारे तो अगरचे जलगांव की सरजमीन पर हो, बगदाद मोहल्ला से उसकी इमदाद हुआ करती है। हजरत गौसे पाक उसकी रहनुमाई फरमाते हैं, हम गुनहगार उम्मती यहाँ से पुकारते हैं, नबी पाक हमारी इमदाद फरमाते हैं। मेरा ईमान ये कहता है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। देखिए हजरत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला इमदाद फरमाते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। आपका दस्ते पाक ऐसा है, आपने सुना कि अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। अब उस हाथ को हम लोग नहीं नाप सकते हैं, ये अल्लाह 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 उनको तसर्रुफ अता फरमाता है। आप बगदाद की सरजमीन पर अपने मुरीदों के यहाँ तशरीफ फरमा है कि यकायक मुरीद फरमाते हैं कि क्या देखें, सरकार गौसे पाक का चेहरा सुर्ख हो गया है और उसके बाद आपने अपने जुब्बे में अपने हाथ को डाल दिया और हाथ को डालने के बाद तो थोड़ी देर के बाद आपने निकाला है तो आपके हाथ से पानी के कतरात गिर रहे थे। किसी में सकत न हुई, किसी में हिम्मत न हुई, किसी कोई ताब न ला सका कि सरकार गौसे पाक से पूछ ले, हुजूर ठंडी का मौसम है, जाड़ा कड़ाके का है, आपने अपने जुब्बे पाक में हाथ को डाला, हाथ को निकाला, पानी के कतरात टपक रहे हैं, लेकिन उनके मुरीदीन ने, उनके शागिर्दीन ने ये ज़रूर किया कि सरकार गौसे पाक का जो हाथ डालने का वक्त था वो टाइम को नोट कर लिया, वो दिन को नोट कर लिया, उस महीने को नोट कर लिया। उसके बाद इन लोगों ने अपने पास उसको रखा। अल्लाह अल्लाह, एक महीने की मसाफत के बाद, एक महीने के बाद एक काफिला आता है बहरुल काहिर पे, जो तिजारती काफिला था, वो सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, हुजूर ये आप ही का करम है, हुजूर आप ही को पुकारा है, हुजूर हमारी तो जान के लाले पड़े थे, हुजूर हमारी तो मान के लाले पड़े थे, हुजूर आप ही का करम है, आपने हमें बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह, जब ये मामला पेश आया, लोग परेशान हैं, सरकार गौसे पाक की बारगाह में उन्होंने तोहफा तहाइफ पेश किया है। जब तोहफा तहाइफ पेश करने के बाद वो बाहर निकलने लगे, वो मुरीदीन और वो शागिर्दीन वहां तशरीफ फरमा थे, जिन्होंने देखा कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में तहाइफ पेश किए जा रहे हैं, तहाइफ पेश किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप अगर तवज्जो नहीं फरमाते, आपका करम नहीं होता, हमारी कश्ती तो फर्क आपसे। अल्लाह अल्लाह, मुरीदीन शागिर्दीन ने पूछा, आप हुजूर से क्या बात कर रहे थे, आखिर आप क्या मामला था, हुजूर से क्या बात कर रहे थे, जान के लाले पड़े हैं, आपके मान के लाले पड़े थे। आपके वालों ने कहा कि आपको मालूम नहीं है, हम जब कश्ती से सफर कर रहे थे, कश्ती से सफर करते करते जब हमारी कश्ती एक पहाड़ से टकराई है तो उसके नीचे एक सुराख हो गया, एक लकड़ी का छोटा सा धक्का वहां से निकल गया है। जब उसमें सुराख हुआ, उसमें पानी आना शुरू कर दिया। अब लोग अपने घर से उस पानी को निकालते, जितना पानी निकालते उससे कहीं गुना ज्यादा उसमें आ जाता। अब हमको समझ में आ गया, अब तो जान जानी है, अब तो बच्चे यतीम होने हैं, अब तो औरतें बेवा होनी है, अब तो माँ का सहारा छूटना है, अब बाप की मोहब्बत का कोई सहारा नहीं मिलेगा। अब जब हम बिल्कुल बिल्कुल चारों तरफ से हम लोग महरूम होने लगे तो हम में से किसी ने आवाज दी, हे लोगों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब
आप लोग करीब आ जाओ और चलो उसके ऊपर से, यानी कश्ती की छत के ऊपर चल जाए, यानी दूसरे तल्ले पर चढ़ने के बाद हम बगदाद की तरफ लौ लगाए और बगदाद की तरफ लौ लगाने के बाद हम वहीं पर अरीजा पेश करें, यहाँ से कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेख अल्लाह अल मदद। ए लोगों, आप जानते हो जब हम लोग कश्ती के ऊपर चढ़ गए हैं और कश्ती के ऊपर चढ़ने के बाद तब हमारी आवाज बुलंद हुई है, हमने सरकार गौसे पाक को पुकारा है, जो कश्ती हमारी डूबने वाली थी। हमने क्या देखा है, आगे सतह पर एक कोहनी तक का हाथ नमूदार होता है, जिसने हमारी कश्ती को एक थपेड़ा मारा है, किनारे पर लगा दिया है। उनके शागिर्दीन, उनके मुरीदीन ने उस रुक्के को निकाला है, उस कागज को निकाला है। कागज को निकालने के बाद तारीख को देखा है, दिन को नोट किया था, उसको देखा है, महीना नोट किया था, उसको देखा है। उसके बाद फरमाने लगे, कसम खुदा की हमारे शेख ने तुम्हारी मदद की है। वही हाथ था जो बगदाद में अपने चुप्पे में गया था और सैकड़ों मील की दूरी पर तुम्हारी इमदाद कर रहा था। जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सच्चे दिल से सरकार और से पुकार को लेके इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ पर भी बेड़ा पार हो जाएगा। कादरी रब कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत मान के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला हमारे दीन की हिफाजत फरमाए और अल्लाह की प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सच्चे गुलाम हैं उनके नक्शे कदम पर चले, यही चीज़ हमें वहाँ तक ले जाने वाली है। अल्लाह अल्लाह आला हजरत ने इसीलिए इरशाद फरमाया, अर्ज बर्दाश्त है या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके बेसुराग लेके चले। उबारे रात से कह लो नक्शे फल चला ले, जमाना फिर ही नहीं ढूंढेगा रहबरी के लिए। अस्सलामु अलैकुम।